Advanced calculus is very important course. It is the base. सर जी बताइए. So let us start. So I think I have started the limit. So let me recall the definition of limit again. So for function of one variable, how we define the limit? The limit, we say limit x tending to x naught, fx is equal to some L. L is the limit. So what does it mean? It means what? When x tending towards x naught, the function fx tending to L. है ना? ये तो होता है. For example, if I am say limit x tending to 2 and you have some function x minus 2 whole square. So when x tending to 2, it will be what? 0. Or you can say limit x tending to infinity 1 upon x, its limit will be 0. Or you can say limit x tending to 0 1 upon x will be how much? Infinity. Eh? In this way you know how to define a limit. Or if you have limit x tending to 0 sine 1 upon x, what about this? Sir, a value between -1 and 1. So we say it is oscillating. We say it's oscillating between -1 and 1. Oscillating -1 to 1, है ना? क्योंकि आपका साइन है तो साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा. बट इन दिस केस आई विल से इट इज ऑसिलेटिंग. So these are the way you can find the limit. So this is defined, this is defined, this is not defined. Here also limit is not unique. It is lying between 1 to 1. इसका मतलब क्या होता है? What does it mean? इसको I can understand in this way. Okay, if you have a point x, here you have some point x, and when it is moving towards x naught, suppose you have some point x naught. तो जब ये x naught की तरफ move कर रहा है ना? So when it is moving towards x naught, what is happening? The function fx, अब इसकी कहीं वैल्यू होगी. वैल्यू कहाँ पर होती है? अगर ये आपका x एक्सिस है तो वैल्यू बेसिकली I take on the y axis. So here your fx, here suppose it is some fx, this fx is tending towards the point L. ये तो कहेंगे. The definition I can understand in this way also. Or you can say that the distance between fx and L is shrinking. Distance को how I will write? I will write in terms of mod. कि ये जो distance है ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है. Less than epsilon. Epsilon is some small positive quantity. So this difference is decreasing, shrinking. कब? Whenever distance between x and x naught is also decreasing, है ना? This greater than 0. So this thing I can write in this way also. Okay, fx mod of fx minus L less than epsilon whenever mod of x minus x naught less than delta greater than 0, है ना? Positive तो है, ये भी greater than 0 है. So here delta is also some positive quantity, some positive number. This epsilon is some positive number. So I can write a definition कि we can, इसका मतलब क्या है? इससे अगर आप ओपन करेंगे, जब इसको आप ओपन करें, if you will open it, you know, इसका मतलब क्या होगा कि x lying between Sir, x naught minus delta to x naught plus delta. it, what does it mean? It means Sir, fx lying between f L minus ना? So you epsilon. yes, है ना? So you can say that when this x naught is lying in the small interval, क्योंकि x minus delta किधर आएगा? If you have this point x, so this is your x minus delta, this is your, sorry, x naught minus delta, this is your x naught plus delta. हाँ, ये तो इंटरवल आएगा. So this point is lying between this interval. कोई भी पॉइंट कहाँ लाई करता है? x डॉट इसी में तो लाई करता है भाई. कोई पॉइंट अगर आप यहाँ पे 1 ले ले तो 1 कहाँ लाई करेगा? 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा. ये तो बिकॉज डेल्टा इज सब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमेशा मैं ऐसे लिख सकता हूँ. सो हेयर, व्हाट अबाउट दिस? हेयर आल्सो
it means what? Fx lying between L minus delta, L minus epsilon, L plus epsilon. इसी डेफिनेशन को आई विल एक्सटेंड, ये जो डेफिनेशन दी मैंने इसको आई विल एक्सटेंड टू डिफाइन द लिमिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. तो हाउ आई वाज डिफाइनिंग, देखो इसी को हम क्या कहेंगे, वी से दैट अ फंक्शन एफ एक्स वाई tending towards L means I can say in symbolically I can write limit x comma y tending, because function of two variables I am taking now, tending to x naught y naught. We say this function has a limit L. It is a symbolically curve if mod of f x y minus L less than epsilon whenever. अब यहाँ पर आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है ना, तो टू वेरिएबल से आपका पॉइंट यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है, कहीं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जब पॉइंट लाई करेगा तो व्हाट आई विल टेक, क्योंकि इन द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यू हैव ओनली वन डायरेक्शन, तो एक्स नॉट तक यू कैन अप्रोच फ्रॉम टू डायरेक्शंस ओनली, लेफ्ट और राइट. बट हेयर व्हेन यू हैव अ पॉइंट हेयर, सपोज यू हैव पॉइंट हेयर एक्स नॉट वाई नॉट, नाउ आई वांट टू मूव towards this point, so you know I can come along any direction, so what I will take a small circle, disk. circle, Disk बोला करो यार, circle नहीं. disk, Circle is not a word, disk. So I will take a disk, and here if you have some point xy, a point near to xy, so I want to find what is the value, so I will say अब इसकी वैल्यू कुछ होगी fxy है ना, इसकी वैल्यू z कहीं आपकी z एक्सिस पे आएगी, क्योंकि हम z इक्वल टू xy लिखते हैं. So what I will say, if this function fxy will have a limit L if whenever your, अब इस डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे हम डिस्क के केस में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यू नो x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square, when this distance is shrinking, है ना. यहाँ पर डिस्टेंस कैसे होती है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यू कैन मेंशन योर डिस्टेंस बाय मॉड, but function of two variable I will take distance by the this formula, distance formula between 2 points. So when this distance, it is distance between 2 points with square root, you know, है ना. So whenever this thing is less than delta, इसका मतलब क्या है कि ये चीज less than delta है, means what, कि when this point is moving towards x naught y naught, what's happening here, this is your L, suppose this is your fxy, then what happening, fxy tending towards L. Okay, so we say limit exists, or when limit exists, you know it should always unique. यहाँ पर हम जब फंक्शन वन वेरिएबल लिमिट निकालते थे तो लिमिट शुड बी यूनिक, हम किसी भी डायरेक्शन से आए वैल्यू शुड बी ऑलवेज L. सेम थिंग इट हियर, कैन यू आर ऑन द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इफ यू आर ऑन R2 प्लेन, अब R2 प्लेन में यू हैव इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शंस, तो यू कैन चूज एनी डायरेक्शन, लेकिन वैल्यू हमेशा fxy की क्या आनी चाहिए, L ही आनी चाहिए. तो वी से दिस, डेफिनेशन क्या होगा आपकी, just I am recalling this thing because I have explained already in the last lecture. So I will say that a function fxy has a limit L if for every epsilon greater than 0 there exists a delta such that this is happening. ये एक डेफिनेशन थी, बताइए यहाँ तक क्लियर है ये. Yes, sir. ठीक है, तो whenever I will check limit by the definition, I will take this formula, है ना. कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे check by the definition, so it is the definition. नॉर्मल प्रॉब्लम से तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जैसे कोई प्रॉब्लम है आपकी, एग्जाम्पल 1 है, फाइंडिंग लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 1 x minus xy plus 3 over x square y plus 5xy minus y cube. So here direct I can put the value. I will see your denominator should not be 0. If denominator 0, it will be term not defined. यहाँ denominator 0 नहीं हो रहा आपका, तो यहाँ पे xy tending to 0 1 पे I want to find what is the limit of this function. ये आपका fxy given. Direct you will put the value 0 minus 0 plus 3 upon 0 into 1 तो 0 है, plus 5 into 0
-1 whole cube, so it is -3. Limit minus is, है ना, limit is existing. एक्सक्यूज मी सर, Yes, सर मैं लीव कर सकता हूँ सर? कर दीजिए आप, क्या हो गया आपको? सर घर में मैयत है ना, बड़ी अम्मी की इंतकाल हो गई है। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी, आप अलग से मैसेज डाल देते सर, ऐसा है तो यू कैन लीव. ओके Okay. ओके, थैंक यू सर। Similarly, if you have a problem, limit xy tending to 0 x square minus xy over under root x minus y. So here you know, can I put direct limit 0 like in the previous problem? No. तो सर So what I have to do? I पहली have to सर न्यूमरेटर में से x कॉमन लेंगे, फिर हम सर a प्लस बी a माइनस बी लगा देंगे। with denominator terms making it non-defined. So I will have to remove this denominator term. What I will do? I will multiply by its conjugate. So you can multiply by, इससे कर दे multiply, दीजिए सर। है ना? इससे what happen? A plus b, a minus b. So you will be having, you can take x common also. So you have x minus y, root x plus root y, and in denominator a plus b, a minus b, a square minus b square. So how much? X minus y, and limit xy tending to 0 0. This will be cancelled out, its value will be how much? 0. जो है ना, क्योंकि denominator से आपका difference खत्म. So limit xy tending to 0 is, it means what? कि x tending to 0 and y tending to 0. ये होता है इसका मतलब. Okay. Now I want to show whether limit exists or not. या यहाँ in these type problems you can do. Now suppose I have a problem, find the limit. Find, next page पे करते हैं. Third problem. Find limit xy tending to 0 0 4xy square upon x square plus y square if it exists. इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना है. देखिए, ये फंक्शन की बिना है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है इफ इट एग्जिस्ट. अगर एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट तो 0 0 रख नहीं सकता, 0/0 बन जाएगा, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर्म, है ना. तो आई विल टेक दिस बाय द डेफिनेशन कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो निकालिए. तो व्हाट आई विल सी, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? इफ यू आर एबल टू फाइंड अ डेल्टा, है ना. डेफिनेशन क्या थी? क्या फंक्शन हैज अ लिमिट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा. तो हमें यहाँ दिखाना है कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करेगा. ये एप्सिलॉन डेल्टा कैसे निकालेंगे, यही हमें देखना है बस, हाउ टू फाइंड दिस एप्सिलॉन डेल्टा. यहाँ पे तो ये जनरल लिखा है मैंने. So now look at here. Firstly, I will see कि what is the possible limit of this function. इसकी लिमिट क्या हो सकती है, पहले हम ये सोचते हैं. ठीक, प्रॉब्लम गिवन है कि xy tending to 0 0. xy tending to 0 0 means your xy points tending to 0. अब देखो xy tending to 0 means what? क्या है? मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, है ना. xy tending to 0 0 means what? I am moving towards the origin. अब towards origin I can move along x-axis. Along x-axis भी आ सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना. वैसे तो infinite paths है. Suppose I am taking 2 paths, so I can come along x-axis and I can come ऐसे ही along y-axis. दोनों ऐसे आ सकता हूँ मैं, बताइए. Both the paths are there. In fact, there are infinite paths. In there are infinite paths, I have chosen some 2 paths. So I have chosen along x-axis, along y-axis. Along x-axis, what will happen? If I will be coming along x-axis, y will be what? Always 0. अगर मैं x-axis से along आ रहा हूँ तो, okay? बोलिए. यस सर. तो अगर along x-axis y is 0, तो it means what? तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें?
फंक्शन आपका ये एफ एक्स वाई है, इट विल बी 0, है ना, वाई Yes, 0 sir. रख दो। सिमिलरली, है ना, y नॉट 0 along x axis I am coming, तो y is equal to 0 ले रहे, so this is hope happening, है ना, and x not 0, I am supposing along x axis है and x is not 0. Similarly, along y axis, your y axis में x is equal to 0 होगा and I am saying y is not 0. जब y axis पे आ रहे हैं तो जाहिर है y तो 0 नहीं है, इस पॉइंट पे 0 होगा, then again your fxy will be 0. अब आप x 0 रखेंगे तो फिर ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है ना, इफ फंक्शन इज 0 तो लिमिट भी 0 है। अब आप अगर आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट भी आल्सो 0, सो इट मींस व्हाट कि यू सा हियर if you are coming along two different paths the limit is 0, so it means what कि if limit exists it must be 0, क्योंकि दो पाथ से अगर लिमिट आ गई तो लिमिट इज ऑलवेज यूनिक। तो इफ along x axis लिमिट इज 0, along y axis लिमिट इज 0, इसका मतलब कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मैं किसी भी पाथ से आऊं, किसी लाइन के किसी कर्व के थ्रू, लिमिट क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए, है ना, वरना लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इफ इट एग्जिस्ट इट मस्ट बी 0, बताइए। Yes, sir. we saw that Yes. along we saw that along two different paths the limit of fxy, fxy का मतलब यहाँ पर ये है ना, is 0, so if the limit exists it must be 0. 0, है कि नहीं है, है, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भी, क्या बोल रहे हैं आप, बिल्कुल, इट मस्ट बी 0, ओके। ये क्या बोल रहे थे, समझ में आया किसी की, क्या कह रहे थे, नो सर, आवाज क्लियर नहीं थी। इनकी आवाज क्लियर नहीं, सर हेलो जी जी, सर, एक्स एक्सिस पे हमारी कुछ और आती, मतलब हमारी लिमिट ये डिफरेंट है, और एक्सिस पे डिफरेंट 0 0 ना आती दोनों, तो हाँ, ये हमारी एग्जिस्ट करती है, यही होती है नहीं ना। नहीं, तो हम यही लिख देते बस कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि टू डिफरेंट पाथ से लिमिट डिफरेंट आ रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम यही लिख देते जो बस। सेम आएगी सर तभी होगी हमारी, हाँ, एग्जिस्ट जब करेगी। सेम आएगी तो, लेकिन अभी सिर्फ दो पाथ से सेम आने का मतलब ये नहीं कि हर पाथ से सेम है ना, क्योंकि पाथ तो इनफाइनाइट है। यस यस सर। वो जो आप कह रहे हैं वो जी जी, तो कहलाता फिर है क्या, नॉन एग्जिस्टेंस टेस्ट, कि अगर आपको शो करना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम ये शो करने के लिए ऐसा कर देते हैं, दो यस पाथ चूज कर लेते हैं, दिखा देते हैं दोनों पाथ से लिमिट अलग, लेकिन यहाँ पर हमें ये शो नहीं करना है, यहाँ तो हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ओके। तो हमने टू डिफरेंट पाथ चूज यस करे सर। आर्बिट्रेरी, हमने देखा दोनों से लिमिट 0 आ रही है, तो अगर इन दो पाथ से 0 आ रही है तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डेफिनेटली क्या होगी, वो 0 होगी, है ना, दैट मीन्स कि एल मस्ट बी 0, यहाँ पे जो एल था हमारा फॉर्म डेफिनेशन में, एल मस्ट बी 0, ये हमें आइडिया लग गया। अब आगे देखते हैं, क्योंकि अब मैं अगर मैं कहूँ कि साहब हर एक पाथ से चूज करो, तो यू कैन नॉट चूज, देयर आर इनफाइनाइट मेनी पाथ, यू कैन टेक y is equal to mx, you can take x is equal to my square, somebody may take y is equal to mx cube, है ना, तो you cannot prove it by taking different paths because there are infinite many paths, तो इसका मतलब क्या हुआ, I have to prove in a general way, तो general way का मतलब I have to take the definition, is it clear? यस सर। हाँ, क्योंकि हम यस पाथ लेके प्रूफ नहीं कर सकते, पाथ लेके हम डिसप्रूव कर सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए आई विल टेक द डेफिनेशन। नाउ एल 0 पर चल गया, सो इट मींस व्हाट कि इफ लिमिट एग्जिस्ट आई विल शो दैट देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा, तो हम ये मान के चलेंगे कि लेट एफ साइला ग्रेटर देन 0 इट इज एग्जिस्टिंग, सपोज इट एग्जिस्ट वी गिवन, ये एफ साइला हमें पता है, हम इसे फाइंड करेंगे, है ना,
So what is my motive now? I want to find delta. So we will find delta greater than 0 such that कैसे कि your fx y minus l less than epsilon whenever this thing happening x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square less than delta. अब यहाँ पर fxy आपको गिवन है 4xy अपॉन x स्क्वायर 4xy स्क्वायर था यहाँ पे माइनस एल। अभी हमने देखा कि अगर एल इसके एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा 0 है ना, 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 लेस देन। अब यहाँ पे x नॉट y नॉट आपका 0 है ना, दे रखा है एट अ पॉइंट 0 0, तो x नॉट y नॉट इज 0 0, so x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ओके, अब हमें डेल्टा फाइंड करना है फॉर सम एप्सिलॉन। इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आई कैन राइट 4 मॉड को मैं इनसाइड ले जाता हूँ 4 मॉड x बिकॉज y इज पॉजिटिव, y स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो y स्क्वायर को आई कैन राइट विदाउट मॉड, नो प्रॉब्लम। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको भी आई कैन राइट विदाउट मॉड। इसको मॉड ओपन कर लिया लेस देन एप्सिलॉन whenever this happening x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक, अब यहाँ इसको वी विल सॉल्व दिस एंड आई विल फाइंड सम रिलेशन। ये हमें ध्यान रखना है कि ये लेस देन डेल्टा है। सो यू नो नाउ, इसको यहीं रोकें अभी। वी नो दैट y स्क्वायर इज लेस, अब देखो मुझे यहाँ पर लेस देन पॉइंट लाना है, तो मैं ऐसे कुछ लेके चलूंगा, कुछ लेस देन थिंग आनी चाहिए। तो व्हाट आई विल टेक, आई नो दैट y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये बात सही है यस सर। है ना, इक्वल हो जाएगा, 0 ले लूंगा, अदरवाइज राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बिकॉज आई एम एडिंग सम पॉजिटिव थिंग, x स्क्वायर आई एम एडिंग हियर, तो आई कैन राइट y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यू कैन से इसे डिवाइड कर दें बिकॉज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो साइन विल नॉट चेंज, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, बोलिए। अब आई वांट 4 mod x, so I can multiply by 4 mod x also, both side multiplying by 4 mod x। यहाँ क्या आएगा, ये लिख सकता हूँ भाई 1 था और ये पॉजिटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया। बोलिए, इज इट क्लियर? ये हमने क्या Yes, करा, आई sir. वांट टू Sir. मेक, देखो आई वांट टू फाइंड दिस एप्सिलॉन एंड डेल्टा। तो एप्सिलॉन फाइंड करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वो क्वांटिटी कैसे आएगी, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने देखा आई वांट समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो कैसे आया, हमने यहाँ पे रिलेशन बनाई। तो ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब आप 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा हम इसे कैसे स्टार्ट करें। तो व्हाट आई डिड, आई नो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1, 4 mod x से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ताकि पूरा फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड, तो पूरा fxy आ गया। ये हमें पूरा fxy बनाना होगा। इधर राइट हैंड साइड में क्या क्वांटिटी आई है, 4 mod x। 4 mod x को आई कैन राइट 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, mod x इज x स्क्वायर, आई कैन राइट दिस x स्क्वायर। ये इक्वल टू मैंने किसके लगाया, इसके इक्वल लगाया है। लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर स्टिल। ओके, बताइए यहाँ तक, इस स्टेप को ध्यान से देखिए। ये सर 4 आगे mod x, समझ। तो ये हैं? 4 mod x, तो 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है आपने? क्योंकि यही होता है ना, एक्स स्क्वायर को आप यू कैन राइट मॉड एक्स, जब आप इसे खोलेंगे तो इट विल बी व्हाट, सम पॉजिटिव क्वांटिटी। भाई अंदर कोई स्क्वायर है, 2 स्क्वायर क्या आएगा, 2 ही तो आता है। 2 मीन्स मॉड 2, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। या आप निगेटिव ले ओके लें, सर, निगेटिव ले लें यस आप, -2 का होल स्क्वायर है तो क्या लेंगे, -2 लिखेंगे क्या,
2 ही तो 2 लिखेंगे, तो मॉड ऑफ -2 Yes. लिखेंगे, है ना। तो जब भी किसी x Okay. स्क्वायर होता है वो इक्वल टू मॉड x होता है, हम्म। ओके। तो मॉड x को आई कैन Okay. राइट दिस। अब देखो मुझे रिलेशन बनानी है एप्सिलॉन डेल्टा में, तो यहाँ पर ये चीज तो आपकी एप्सिलॉन की चल रही है, लेकिन डेल्टा कब आएगा, जब आपके पास ये क्वांटिटी आए, ये यहाँ इसको मैं इसमें कैसे चेंज करूं बताइए, क्योंकि आई वांट टू ब्रिंग डेल्टा हियर, एक रिलेशन बनानी है मुझे। क्या लिखूं इसको मैं, कैन आई राइट दिस लेस देन इक्वल टू 4, ये लिख सकता हूँ क्या, यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई है स्क्वायर। ना। देखो मैंने बताया यहाँ पर जो भी चीज आ रही हो आपके पास फाइनली, उसमें आपको यहाँ डेल्टा लाना होगा। डेल्टा कब लाएंगे, जब ये चीज आए यहाँ पर, तो ये कब आएगी, मुझे दिख रहा था कि आई कैन राइट दिस इट। अब ये क्या है, दिस इज लेस देन डेल्टा, तो कैन आई राइट दिस थिंग इज लेस देन, बताओ, कैन आई राइट दिस थिंग इज लेस देन 4 डेल्टा, इसी को आगे, क्यों, यस सर। क्योंकि ये तो हमारे पास है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई लेस देन डेल्टा। तो हमने क्या करा, फर्स्टली वी मेक इट दिस। नाउ इसकी वैल्यू क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है डेल्टा, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 4 डेल्टा, ठीक। सो इट मीन्स व्हाट यू गॉट, सो यू गॉट, दैट मीन्स यू गॉट 4 सर एक मॉड। मिनट, पिछली वाली स्लाइड लगाइएगा सर, हाँ अभी कुछ लगा डाउट रहा हूँ। था हाँ बताइए। सर। इसमें जो नीचे 4 डेल्टा है सर, ये लेस देन होगा कि लेस देन और इक्वल भी नहीं आएगा लेस इसके देन साथ? होगा ना, क्योंकि आपके पास ये जो क्वांटिटी थी स्ट्रिक्टली लेस थी, स्ट्रिक्टली डेल्टा इससे स्ट्रिक्टली यस सर। ग्रेटर है। तो जब आप यहाँ पर कोई बड़ी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं जो इससे स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ स्ट्रिक्टली यस सर। ग्रेटर है, ओके। ओके सर। हाँ, तो इट मीन्स व्हाट यू गॉट दिस लेस देन 4 डेल्टा, ये आ गया। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि आपको यहाँ पर कुछ एप्सिलॉन मिलना चाहिए whenever, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आई एम अगेन, यू आर हैविंग दिस। अब यहाँ पे वो 0 हो गया है, x0, तो वही चीज चल रही है, मैं अभी जनरल लिख रहा हूँ, y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो इसका अलग क्या हुआ, सो इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू, क्या चूज कर लूं मैं, एप्सिलॉन बाई 4, देखो क्या आया, 4 डेल्टा आया है। तो इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 4, है ना, तो क्या आएगा, वी गेट, आपके पास यही तो आ गया, 4 मॉड एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। आगे नहीं आगे बताओ, हमें फाइंड करना था डेल्टा, तो डेल्टा क्या मिल गया आपको, एप्सिलॉन बाई 4। इट मींस व्हाट, कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। आप जो भी एप्सिलॉन लेंगे डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। अगर एप्सिलॉन आप कहेंगे एप्सिलॉन मैं 0 लूंगा तो डेल्टा 0 हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन 1 है तो डेल्टा 1/4, एप्सिलॉन 2 है तो डेल्टा 2/4 1/2। इट मींस व्हाट, यू गॉट इट। ये क्या चीज है आपका, ये वही ये था। तो ये तो डेफिनेशन कहती है कि a function has a limit if for every epsilon there exists a delta such that this relation holds। तो हमने यही शो कर दिया यहाँ पे, देखिए कि for every epsilon there exists a delta such that this। बताओ। सर ये जो एप्सिलॉन आई हमेशा एक छोटा पॉजिटिव नंबर होगा ना कोई? जी जी, तो this implies that limit xy tending to 0 0 4x y square upon x square plus y square is equal to how much, 0, 0 है ना। एप्सिलॉन बाई 4। यस सर। क्योंकि हमने अभी शो करा कि इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी, सबसे पहले हमने बात यही लेके स्टार्ट हम नहीं से किया था कि इफ लिमिट एग्जिस्ट इट मस्ट बी 0, क्योंकि हमने चेक करा कि 2 पाथ से 0 आ रही थी, तो इसका मतलब हर पाथ से 0 ही आएगी। अब हमने चेक करा एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो हमने यहाँ पर देख लिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमें एक डेल्टा ऐसा मिल जा रहा है हर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन बाई 4। ये बताइए बात समझ में अगर आ गई आपके, तो फिर समझ लीजिए कि आपका काम हो गया।
सर ये तो आ गई, लेकिन सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर। डाउट आप के लिए तो हम एक बैठे ऐसा हैं। एग्जाम सर एक हाँ ऐसा एग्जाम्पल अगर आप दे देते तो और अच्छे समझ में आता, जिसमें हम ये प्रूव नहीं कर पाते। देखो, प्रूफ नहीं करने के लिए मुझे इस डेफिनेशन की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं करने के लिए मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे आसान मेथड्स है टू पाथ मेथड फॉर शोइंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, जो आगे आ रहा है। जब भी मुझे शो करना होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मैं टू पाथ मेथड्स लगाऊंगा। टू पाथ्स का मतलब क्या, जैसे अभी ये मैंने लगाया हाँ इसी सर, कोई क्वेश्चन को। लाइन या कर्व चुन लेंगे दो। हाँ, ऐसे दो पाथ चूज करेंगे जिसमें डिफरेंट लिमिट्स आ रही हो, है ना। वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी वो आगे आ रहा है। उसका नाम है टू पाथ टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। ठीक है, इसको हम अप्लाई ठीक है, तो करेंगे। सर यस, तो इसका यूज सर हम सिर्फ प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, डिसप्रूव करने के लिए नहीं। डिसप्रूव करने के लिए आपको एप्सिलॉन डेल्टा ऐसा मिले, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि साहब हमें नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यस अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन उठाइए पहले से जो आपको मालूम हो, फिर आप देखेंगे तो आपका एप्सिलॉन डेल्टा नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए यस सर। डिसप्रूव के लिए हमारा बेटर तरीके और हैं। इसे हम जो है प्रूफ के लिए करेंगे। एक और प्रॉब्लम करा दूं इस टाइप की। यस सर। सर चलो, जैसे एक प्रॉब्लम नंबर, ये आपकी अनसोल्व प्रॉब्लम उठा रहा हूँ मैं। 70 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 70, पेज नंबर 764। यू ऑलरेडी हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस बुक। fxy इज इक्वल टू शो डेट लिमिट, शो है या चेक है कि चेक करिए, इसमें आपको शो दे रखा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें आपको फाइंड करनी है लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 पे। ठीक है, सपोज, और यहाँ पे एप्सिलॉन आपको गिवन है। कह रहे हैं कि एप्सिलॉन सपोज गिवन है 0.05, तो फाइंड डेल्टा। डेल्टा फाइंड करना है। ठीक, और लिमिट मान के चल रहे हैं कि सपोज लिमिट एग्जिस्टिंग। हमें नहीं मालूम लिमिट है, हम तो चेक करते हैं। तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक सेम, आई विल टेक। अब हमें वही देखो, अगर हम चेक करें तो इसकी लिमिट इन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि सपोज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0, और आपको दिख भी रहा है कि अगर इसकी लिमिट होगी तो 0। अब मैं अगर इफ आई एम कमिंग अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या होगा, 0 होना चाहिए लिमिट इसकी, है ना। अलोंग एक्स एक्सिस व्हाट विल बी हैपन, y इज 0, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी लिमिट की, 0। यू कैन चेक अगेन, अलोंग एक्स एक्सिस y is 0, so limit will be what, limit of this function is 0. 0 Okay, so I will check limit, so I will find mod of y upon x square plus 1 minus limit 0 है less than epsilon whenever 0, क्योंकि यहाँ पर भी 0 ही है पॉइंट्स आपके, तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यू नो सर I can write, y एक्सिस 0 नहीं आ रही है हमें इसमें। है सर एक्स तो एक्सिस 0 से नहीं लेंगे होगी तो सर हमारी वो इसमें। नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना। वाई एक्सिस लेंगे तो सर 0 नहीं आएगी ना वैल्यू, along y axis क्या हो रहा है, सर वो वाई आएगी वैल्यू। है? 0.1 हो रहा है y along x axis तो 0.1 हो गया ना। along x axis y 0, सर y एक्सिस के अलोंग लो तो आप देखो। नहीं y, अगर हम along y axis लेंगे तो क्या हो रहा है, सर वाई आएगी, सर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई आ जाएगी तो सर y आ वैल्यू। जाएगी ना। हाँ, तो y 0 हो सकता है ना, जब y 0 हो गया तो एग्जिस्ट तो कर सकती है। y नॉट डिफाइंड कोई है। along y axis व्हाट विल हैपन, ये सिर्फ y आ जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 y। अब ये तो 0 हो जाएगा जब y टेंडिंग टू 0 करेगा, तो 0 तो आएगी। नॉट डिफाइंड कोई है ये, है ना। बोलिए। यस सर। हाँ, along y एक्सिस आप x 0 पुट कर देंगे, सिर्फ y बचा। अब y भी कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, तो अल्टीमेट लिमिट क्या आएगी फंक्शन की, 0 ही तो आएगी। तो इसका मतलब कि इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो 0 ही होगी, है ना। अब हम चेक करते हैं, तो आई एम टेकिंग दिस। अब ये तो 0 हो गया, तो यू हैव मॉड ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस आई कैन राइट व्हाट, मॉड ऑफ y अपॉन, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आई कैन राइट, लेस देन 1, है ना, ये लिख सकते हैं। अब ये चीज किससे लेस होगी, कैन आई राइट दिस इज लेस देन
कैन आई से इट इज लेस देन मॉड वाई? बोलो, यस सर है ना? मॉड Yes, वाई से sir. क्योंकि डिवाइड कर रहा हूं, और मॉड वाई क्या होगा? मॉड वाई विल बी लेस देन इक्वल टू वही अंडर रूट, ये लिख सकता स्क्वायर हूँ प्लस वाई क्योंकि मॉड वाई क्या है? अंडर रूट वाई स्क्वायर है, और ये इससे लेस है, और ये क्या हो गया? लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होगा नहीं डेल्टा, क्योंकि ये ऑलवेज लेस देन डेल्टा है। तो इट मींस व्हाट, कि डेल्टा क्या हो गया? सो फॉर डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच? एप्सिलॉन। अब डेल्टा ये आ गया ना आपके पास, तो डेल्टा क्या लूं मैं? अगर डेल्टा को मैं एप्सिलॉन ही ले लूं, दैट मींस 0.05, तो क्या हो जाएगी आपकी ये लिमिट डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है? देखो भाई, यहाँ पर 4 डेल्टा आया था तो मैं डेल्टा को एप्सिलॉन बाई 4 ले लेता। अब यहाँ डेल्टा ही आ रहा है तो डेल्टा को एप्सिलॉन ले लेंगे। 2 डेल्टा आता तो डेल्टा बाई 2 ले लेता, एप्सिलॉन बाई 2, है ना? सो इट मींस व्हाट, Yes, sir. फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करके ये रिलेशन बनानी है कि हमें क्या डेल्टा मिल जा रहा है, नहीं मिल जा रहा है, बताइए। तो सर इस क्वेश्चन में हम जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू लेंगे हमें डेल्टा की भी वही वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर इक्वल आ रही है, वो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर आपका 4 डेल्टा आ रहा था इसलिए हमने ये लिया, यहाँ पर डेल्टा एप्सिलॉन इक्वल ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपके